आज भुवनेश्वर राजस्थान जयपुर को आरंभ हो सीधा सड़क विमान सेवा। एथिपाई पूर्व सेप्टेम्बर 17 में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिठी लिखिते। कार्यक्रम वर्तमान चली जहाँ आप देखिपुंट यार उत्तर में विमान चलाचल नहीं बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चिठी लिखि स्पष्ट करते द्वारा मंदिर मालिनी भुवनेश्वर गोलापी सहर जयपुर मध्य सीधा सड़क विमान सेवार सुविधा यात्री माने पाई परिबे। आपण सीधा सड़क चित्र देखुछंती ये कार्यक्रम। अशोक चंद्र पांडा जी से निवेदन करती हूँ कि वे 2 शब्द कहें। Honorable Minister, Union Minister Civil Aviation, Shri Jyotiraditya Scindia ji, Honorable Minister Education, Union Education Minister, मेरा छोटा भाई है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, Honorable Minister श्री असीन वैष्णव जी, the Honorable MP of Jaipur, Honorable MP श्रीमती अपराजिता षडंगी भुवनेश्वर, Honorable MP Dr. Sasmit Patra, and Honorable MP Shri Sujit Kumar, and officials of Minister of Civil Aviation at Delhi and other Indigo CEO and officials and friends, well-wishers, those are here at the Delhi end also, and media friends. I am becoming a little bit emotional. Please excuse me for that. As an Odia, when I used to come back to Bhubaneswar, the Air Hostess announces, "Welcome to Biju Patnaik International Airport." This is the announcement. I am also thankful to, I remember when I was in Doordarshan News, I also pay my deepest regard to departed Prime Minister of India, Shri Atal Bihari ji, for his effort for this size. I was present in that meeting which was. That particular announcement used to hurt me every time. And I took it to the notice of Honorable Chief Minister Naveen Patnaik ji. Sir, it is hurting not only me, hurting everybody. So, what did he do? He, just to facilitate the more air connectivity to Bhubaneswar, the temple city, and he reduces the ATF fuel charges to 0. Were one of the states in India at that time. We made it 0 to facilitate the more direct air connectivity, more flight operation from this city. This is one. Then we took the second important step. That is, I was the Minister of Tourism and Culture. With the blessing of Honorable Chief Minister Naveen Patnaik, we are the first state in India. I am just underlining it. We are the first state in India which subsidize the Air Asia connectivity to Kuala Lumpur from Bhubaneswar. No other state did it. I remember one of my media friends, Ashok Das, who was in Samaj, said, "Ashok, thank you that I could go to Kuala Lumpur at the rate only 500 rupees ticket, because you was one of the earliest buyers." So at least that jinx gone, that Biju Patnaik International Airport without a international flight, and the air operation started to Kuala Lumpur. So that's why I said I am emotional. I am also thankful to Dharmendra Pradhan ji, younger brother, who convened a meeting in his chamber. I joined there. He called the then CEO to ensure to facilitate air operation to Dubai as well as to Sri Lanka. I still request Honorable Union Minister Shri Jyotiraditya Scindia ji, please consider we have rich potential in the Buddhist pilgrimage site. Minister of Tourism has one of the schemes, not schemes exactly, the program, that is the Buddhist circuit. We have Ratnagiri, Laltagiri, Udaygiri, and Sri Lanka is the right place. Let us have, please consider, let's have a air connectivity from Bhubaneswar to Colombo and to Bangkok also, so that low budgeted Buddhist pilgrims can come to Bhubaneswar. We have Lalitagiri, Ratnagiri, Udaygiri, and Dholi also. These are the two considerations I am making before the Honorable Minister
Jyotiraditya Scindia ji, and his father, late father, also had a soft corner for Bhubaneswar also. And this is first thing I must congratulate Honorable Minister Sridhar ji and Dharmendra Pradhan ji and Ashwin Vaishnav ji that it's a dual legate. I agree completely with Honorable MP Sujit ji that, and also Honorable MP Madam Sarangi, who has proposed direct connected to Jamutwai, and that is to be considered. And it's connecting both Pink City and the Temple City. It's connecting. We have always heard that great travel bazaar in Rajasthan, and we did it, with CM also did it in travel bazaar in Odisha. And we have been always sidelined by the tour operators. They mostly people, particularly the tourists, those who come from European countries, they come to Delhi, go to Jaipur, Pink City, then they go to the land of backwaters, God's own country, that is Kerala. Then they go back. They never look at the east. I am also saying, if the focus is the eastern states and the northeastern states, please have some look, please have some focus to these states in the eastern sector. I hope this, I also again thank Honorable Union, all the three Union Ministers that for this initiative. It's a dually gift, and I thank all of you. Lord Jagannath definitely will bless Union Ministers and also the Union government for this. And I am saying something. The Kulabuddha Madhusudan Das, the great Udiya, the great son of Odisha, he said, Jati Nandi Gosha Chori Bhakti Bhai, Navin Patnaik has never made his interest. It is the public interest which has come before. This is also public interest for last 21 years. It is the public interest. Bahujana Hitaya, Bahujana Sukhaya. Dhanyabad, Vande Utkal Jal. धन्यवाद। अब मैं ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया कुछ शब्द कहें। नमस्कार। मेरे परम आदरणीय बड़े भाई श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सांसद मित्र डॉक्टर सस्मित पात्रा, श्रीमती अपराजिता सारंगी, श्री सुजीत कुमार जी, जयपुर के सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, उड़ीसा सरकार के मंत्रीवृंद, नागरिक विमान मंत्रालय के सचिव, इंडिगो के वाइस प्रेसिडेंट और उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज धनतेरस का पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको एक तोहफा दिया, इस तोहफे के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। धनतेरस हम सबको, हम छोटी दिवाली भी कहते हैं इसे, तो इसको दीपावली का उपहार ही माना जाए। सिंधिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस समय इस महत्वपूर्ण गिफ्ट देने के लिए। उड़ीसा और राजस्थान दोनों टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कई वर्षों से, कई दशकों से टूरिज्म की एक अलग प्रणाली शुरू हुई, जिसमें राजस्थान की जो हेरिटेज है, उस हेरिटेज को फोकस में लाकर टूरिज्म को डेवलप किया गया। किस तरह से राजा लोग रहते थे, किस तरह से उनकी हवेलियां होती थी, क्या कल्चर था, क्या खान पान था, क्या रिलीजन और कल्चर को मिला के एक तरीके से जो टूरिज्म डेवलप किया, वो एक अभूतपूर्व मॉडल है। उस मॉडल के कारण देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट, बहुत सारे ट्रैवलर्स राजस्थान आते हैं। उड़ीसा मेरी कर्मभूमि है, राजस्थान मेरी जन्मभूमि है। उड़ीसा में जिस तरह का सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य है, वैसा सौंदर्य शायद विश्व में कहीं नहीं। उड़ीसा के बीचेस देखिए, उड़ीसा के जंगल देखिए, जिस तरह के पहाड़ और जंगल और बीच, और एक ऐसा अनुपम सौंदर्य, जिस सौंदर्य की कल्पना, वर्णन करने के लिए बड़ा कोई पोएट होना पड़ेगा। मेरा जैसा साधारण व्यक्ति ऐसा वर्णन नहीं कर सकता। और जगन्नाथ महाप्रभु की असीम कृपा है इस भूमि पर। तो मेरे मन में बार बार एक बार आती थी एक बात कि जो टूरिस्ट दुनिया भर से आते हैं राजस्थान घूमने के लिए, क्यों न वो उड़ीसा भी जाए। इसलिए मैं माननीय सिंधिया जी के पास मेरे ख्याल से कम 10-15 बार आपको रिक्वेस्ट करता रहा, आपको पुश करता रहा
और इतना परस्यू किया, कई बार आप इरिटेट भी हो जाते थे, फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको हमारा सम्मान रखा, उड़ीसा का सम्मान रखा, और इस फ्लाइट को आपने डायरेक्ट कनेक्टिविटी जयपुर से भुवनेश्वर की डायरेक्ट कनेक्टिविटी की। बंधुगण, छोट कथाटा टूरिज्म केवल प्राकृतिक सौंदर्य नुह, टूरिज्म टा यदि देखा गले निजर कल्चर, निजर संस्कृति, निजर धर्म, निजर खान पान, निजर जहाँ दिन दिन आमे जेमिति रहू से सबू प्रक्रिया को विश्व सारा लोक आसिक एक्सपीरियंस करने को चाहते, से एक्सपीरियंस जा थाए से एक्सपीरियंस टा यूनिक। आमे जदि ए एक्सपीरियंस को आहरी भलो भावे प्रस्तुत करि परिबा, मो मत अच्छी, मते विश्वास अच्छी जे जेते टूरिस्ट आसीबे राजस्थान को से माने निश्चित भावे यही फ्लाइट को नहीं कि ओडिशा मध्य जी, ओडिशा को थरे आसीबा आरंभ कले एंटायर गोटे सुंदर सर्किट है जीवो। दुईटा जाको राज्यर धर्म, संस्कृति और कल्चर रो गोटे अद्भुत संगम अच्छी। ओडिशा रे देखिबा को गले जगन्नाथ संस्कृति, महाप्रभुंकर संस्कृति, विशेष खानपान, डालमा की प्रकार सुंदर भावरे खानपान अच्छी। लोक समस्ते आसवा को चाहिए, गोटे बाटोटा दिखाइबा कथा, गोटे फैसिलिटेट करबा कथा, समस्त को जणे जण को आमे जस्ट गोटे रास्ताटा दिखाई देबा कथा, सेतिकी कले तो बहुत किछि हे जे। ओडिसा रो हेरिटेज भी सेतिकी समृद्ध जेते जयपुर को कहती पिंक सिटी, ओडिशा को आम भुवनेश्वर को कहती टेम्पल सिटी। एंटायर ओडिशा इज अ टेम्पल स्टेट। केवल भुवनेश्वर नुह बरम सब जगह इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स, इतने समृद्ध संस्कृति। तो मु भावुची आज ये जहाँ जयपुर टू भुवनेश्वर उड़ान, मु कहूँ राजस्थान टू ओडिशा कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हैला, ए कनेक्टिविटी रो बहुत लाभ पाइबे। ओडिशा रे पाइबे लाभ, राजस्थान रे पाइबे लाभ, और जते टूरिज्म सेक्टर को विशेष करी एथिरे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जहाँ आपनो सहयोग, जो आपने सहयोग किया माननीय सिंधिया जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और दोनों शहर के मेरे भाइयों और बहनों को बहुत अभिनंदन। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय केंद्रीय नागर विमानन मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहेब, आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहेब, भुवनेश्वर में उपस्थित हमारे मंत्री अशोक चंद्र पांडा जी, हमारे संसद में मेरे सहभागी अपराजिता सारंगी जी, सुजीत कुमार जी, सस्मित पात्र जी, जयपुर में रामचरण भोरा जी, मंत्रालय में मेरे साथ यहाँ उपस्थित राजीव बंसल जी, उषा पाडी जी, इंडिगो एयरलाइन से हमारे चीफ कमर्शियल ऑफिसर विलियम बोल्टर जी, मनीष पुरी जी, और भुवनेश्वर और जयपुर में उपस्थित मेरे सभी सम्मानीय महानुभाव भाइयों और बहनों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, धनतेरस का दिवस है, और धनतेरस के दिवस पर मैं अपने हृदय की गहराइयों से उड़ीसा और राजस्थान दोनों राज्यों के निवासियों को, दोनों राजधानियों से दिल के गहराइयों से शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। भगवान त्रिभुवनेश्वर, तीनों लोकों के देव, भगवान शिव की धरती भुवनेश्वर को मैं सादर नमन करता हूं। भुवनेश्वर का एक नाम है देश में नहीं लेकिन पूरे विश्व में कि मंदिरों का शहर है। इट इज अ सिटी ऑफ टेम्पल्स, और एकमात्र शायद ऐसा शहर हो पूरे भारत में जहां हिंदू, बौद्ध एवं
जैन संस्कृति का एक अनूठा समागम हमें देखने को मिलता है। तो भुवनेश्वर उड़ीसा का नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं भुवनेश्वर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानीय भाइयों और बहनों को और अश्विनी जी को भी, भुवनेश्वर को आप उड़ीसा तक सीमित मत रखिए। भुवनेश्वर भारत का गुलदस्ता है और आज केवल एक सिटी ऑफ टेम्पल्स नहीं, लेकिन आज एक स्मार्ट सिटी में परिवर्तित हो चुका है। आईटी और एजुकेशन का हब बन चुका है, पर्यटन का केंद्र बन चुका है और कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप में भुवनेश्वर को एक मारा क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि जिस शहर में पर्यटन है, धर्म का केंद्र है, संस्कृति का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, आईआईटी, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, एम्स, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, निफ्ट, इतने आधुनिक संस्थान एक ही शहर में स्थापित हैं। और भारत का हॉकी का भी केंद्र अगर कोई शहर है तो वो भुवनेश्वर है, भोपाल के अलावा। तो आज मेरा सौभाग्य है कि ये मौका मुझे मिला है। जिस भुवनेश्वर की स्थापना 1948 में हुई थी, स्वतंत्र भारत की पहली प्लैन्ड सिटीज में से एक है। जर्मन आर्किटेक्ट ऑटो कॉन्जिगबर्गर के द्वारा स्थापित हुई थी एक वेल प्लैन्ड सिटी के रूप में। और आज पूर्वी भारत का एक स्वर्णिम त्रिभुज के रूप में भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क, ये गोल्डन ट्रायंगल में स्थापित है। और जहां एक भारत के पूर्वी क्षेत्र का एक गोल्डन ट्रायंगल भुवनेश्वर है, वहीं हम उत्तर भारत के पश्चिमी क्षेत्र के गोल्डन ट्रायंगल आगरा, जयपुर और दिल्ली के साथ एक दिलों का कनेक्शन नागर विमानन क्षेत्र के साथ हम लोग जुड़ा रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं खास करके और धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी को और अश्विनी वैष्णव जी को। कितने बार मेरे पीछे पड़े ताकि ये कनेक्शन हम लोग दे पाए। और मैं अश्विनी जी को कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बिल्कुल इरिटेट नहीं किया। मैं अगर यहां बैठा हूं तो आप लोगों की सेवा के लिए बैठा हूं। मैं तो उल्टा आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, भुवनेश्वर में बैठे मेरे सांसद और मंत्रीगण को और अश्विनी जी को और धर्मेंद्र प्रधान जी को, कि आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भुवनेश्वर एयरपोर्ट में आज 38 एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स हैं, 19 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। और आज जो कदम उठाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि देश के कोने कोने को हम जुड़वाएं। मैं बधाई उड़ीसा की सरकार को भी देना चाहता हूं, क्योंकि वीजीएफ की फंडिंग इस एयरप्लेन की फ्लाइट को भी आप लोगों ने दिलवाई है। तो सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अनूठा उदाहरण इस फ्लाइट के जरिए भी हम देश में प्रदर्शित कर रहे हैं। नागर विमानन क्षेत्र की एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। ये केवल 2 शहरों को नहीं जोड़ रहा, ये केवल 2 राजधानियों को नहीं जोड़ रहा, ये केवल 2 राज्यों के दिलों को नहीं जोड़ रहा, लेकिन इसके साथ इकोनॉमिक मल्टीप्लायर, आर्थिक मल्टीप्लायर, हर 100 रुपए का निवेश नागर विमानन क्षेत्र में 325 रुपए जीडीपी में ऐड करता है। और जहां आर्थिक मल्टीप्लायर होता है वहां एक रोजगार का मल्टीप्लायर भी होता है। हर एक रोजगार के अवसर के साथ नागर विमानन क्षेत्र में 6 रोजगार के अवसर अप्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होते हैं। तो एक इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट गेटवे भी
नागर विमानन क्षेत्र होता है। तो आप सबको मैं अपने दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। उड़ीसा और भुवनेश्वर हमारे लिए प्राथमिकता रखता है। जो पहली कमर्शियल फ्लाइट 1962 में जो शुरुआत हुई थी कलिंगा एयरलाइंस के जरिए, मैं देख रहा था जब अपराजिता जी और जहाँ आप देखुले आज जेहेतु भुवनेश्वर राजस्थान जयपुर को सीधासख विमान सेवा आरंभ हो कार्यक्रम बर्तमान चली।